لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان پہلا باب 68 آیت سے لے کر 71ویں آیت ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، خداوند اسرائیل کی خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم داؤد کی گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا، جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے ہوئے پر اس کی برکت نازل ہو، کہیے آمین۔ آئیں دعا کریں۔ خداوند زندہ خادم ہے، کاہن ہے، وہ خاص طور پر اس حوالہ جات میں یا اس باب میں جو ہے وہ خاص طور اپنے رونمائی کر رہا ہے۔ اس کا یہاں پر خاص طور پر ذکر مل رہا ہے کہ وہ کیسے خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں لیتا ہے، کیسے اس کی بیوی الیشبا پر خدا کا جو جلال ہے اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے الیشبا جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے اور اس کے جو ہے پیٹ میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مقدس جو خدا کا خادم ہے جو وہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیٹ میں سے، جس کا نام جو ہے وہ یوحنا ہے۔ یوحنا استباغی جو ہے وہ خدا کا ایک چنیدہ خادم ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہونے والا تھا تو جب یہ خوشخبری جو ہے وہ دی جاتی ہے تو نہ تو زکریا جو ہے وہ اس بات کا یقین کرتا ہے اور نہ ہی اس کی بیوی الیشبا جو ہے وہ اس بات کا یقین کرتی ہے کہ میرے پیٹ میں کیا واقعی ہی جو ہے وہ بیٹا جو ہے یا بیٹی جو ہے یا میرے واقعی میری زندگی سے یا میرے سلوک سے جو ہے وہ کوئی اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ اس بات کی یقین دہانی نہیں کرتی ہے۔ لیکن یہ بات کو یاد رکھیے کہ جن لوگوں پر خدا جو ہے وہ توجہ کرتا ہے انہی لوگوں کی زندگیوں میں خدا جو ہے وہ نجات کا کام کرتا ہے۔ جب ہم کلام مقدس کی ان باتوں کو سنتے ہیں تو ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر خداوند کا زندہ کلام جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے جو ہے وہ باعث برکت ٹھہرتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو خدا کا خادم زکریا جو ہے اس کے لیے جو ہے اولاد کا پیدا ہونا جو ہے وہ خدا کی خاص طور پر توجہ اور خدا کی نجات کا جو ہے وہ سبب ٹھہرا۔ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ خدا نے ان کی زندگیوں پر اپنی توجہ کی اور ان کی زندگیوں پر توجہ کر کے ان کو نجات کی راہ جو ہے ان کو دکھائی۔ آج بھی اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو یاد رکھیے خدا انہی لوگوں کو اپنی زندگیوں میں لیتا ہے، انہی لوگوں کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے، جن سے وہ پیار کرتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن سے وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کی زندگیوں میں اپنا جلال ظاہر کرے۔ ورنہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا جو ہے وہ بنا پوچھے یا بنا جانے یا بنا کسی کو پرکھے یا بنا کسی کو چھانٹے جو ہے وہ کسی پر اپنی توجہ کرے یا اسے اپنی نجات کا جو ہے وہ مرکز بنا سکے۔ یاد رکھیے خدا انہی لوگوں پر اپنی جو ہے وہ توجہ کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ آج صبح ہم دیکھیں گے خداوند کی زندہ کلام میں سے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسیح پر توجہ دینے والوں کو مسیح نجات بخشے۔ اپنی زبان سے اپنے بیٹے کا نام، اس کے بیٹے کا پیدا ہونا اس بات کی نشاندہی تھی کہ خدا نے اس پر اپنی توجہ کر لی ہے، خدا نے اس پر اپنی نظر ٹھہرائی ہے، خدا نے اس پر اپنا رحم کیا ہے، خدا نے اس پر اپنی برکت کو نازل کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں پر توجہ کی۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں پر توجہ کر کے ان کو نجات بخشی۔ اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت لفظ لکھا ہے، اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں سے ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا۔ نجات کا کیا نکالا جی؟ سینگ نکالا۔ سینگ جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ ہے سینگ، اس کا مطلب ہے مسا کرنے کے لیے کوئی ایسا آلہ جس میں ہم کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں جس سے کسی کو مسا کیا جائے، جس میں کسی کو کیا کیا جائے جی؟ مسا کیا جائے۔ سینگ نکالا، اس کا جو
मुनज्जी भी है। ताकतवर मुनज्जी या ताकतवर खुदा, क्या कहते जी, ताकतवर मुनज्जी या ताकतवर खुदा। मतलब सिंह निकालवानों में अहलियती की जब हम बागोर स्टडी करते हैं वहां हमें पढ़ने से पता चलता है कि सींग में बाकायदा तौर पर जब किसी बादशाह को मसा किया जाता, जब किसी बादशाह को किसी चीज के लिए मखसूस किया जाता, किसी अथॉरिटी के लिए, तो बाकायदा तौर पर सींग में तेल डाला जाता और उस तेल में से जब बाकायदा तौर पर तेल, उस सींग में से जब तेल निकाला जाता तो उस सींग में से तेल निकालकर बादशाह को मसा किया जाता और वो इस बात की निशानदही होती थी कि खुदा ने इस पर तवज्जो की है, खुदा ने इसे मखसूस किया है और अब ये खुदा का बंदा जो है वो बन चुका है। अब यहां पर जो सींग निकाला था ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई गई है। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जो है तवज्जो दिलवाई गई है कि यीशु मसीह जो है वो निजात का सींग निकला है। यहाँ यीशु मसीह जो है वो हमारा ताकतवर मुनज्जी ठहरा है। यहाँ यीशु मसीह जो है वो दाऊद के घराने में से निजात का सींग निकाल के निकला है। यहाँ पर हमें ये पता चला। इसके बारे में हमें ये बातें गौर से समझने की जरूरत है, जिसके बारे में एक और राइटर है, वो कहते हैं, जिनका नाम जी कैमल मॉर्गन है, वो कहते हैं कि इन लोगों पर खुदा तवज्जो देने वाला था जिसकी किसी को तवज्जो, जिसकी किसी को तवक्को भी न थी। खुदा उन लोगों पर अपनी तवज्जो देने वाला था जिन लोगों को इस बात की तवक्को नहीं थी कि क्या वाकई ही खुदा हम पर तवज्जो कर सकता है, क्या वाकई ही खुदा हमें निजात दे सकता है, क्योंकि वो तो इस बात की तवक्को कर बैठे थे कि हमें तो छुटकारा देने के लिए एक ऐसा मुनज्जी आएगा जो हमें जिस्मानी तौर पर रहाई देगा, जो हमें जिस्मानी तौर पर रोमी हुकूमत से निजात देगा, रोमी हुकूमत से हमें छुटकारा देगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि रोमी हुकूमत से छुटकारा देने के लिए वो बादशाह नहीं आया, बल्कि वो रूहानी तौर पर जंग लड़के हमें छुटकारा देने के लिए आया है, हम पर हमारे ऊपर तवज्जो करने के लिए आया है, हमारी जिंदगियों को निजात के उस तमाम पंखों को लगाकर हमें बादलों पर उड़ाकर लेने के लिए आया है, हमारी जिंदगियों पर तवज्जो करके हमारी जिंदगियों में अपना फजल नाज़िल करने के लिए आया। ये कोई आम बात नहीं थी, ये कोई आम फलसफा नहीं था, ये कोई आम फजल नहीं था, बल्कि ये उस तवज्जो का मरकज लोग बन चुके थे जिस तवज्जो का मरकज बनने के लिए खुदा ने यीशु मसीह, उसी तवज्जो का मरकज, जैसे यीशु मसीह आसमान से फर्श अर्श को छोड़कर फर्श पर आया और वो अपने बाप का चुनिंदा बन गया, बाप ने अपने बेटे पर तवज्जो की, इसी तरह से बेटा जो है वो अपने लोगों पर, जिनको वो छुड़ाने वाला था, उन पर वो तवज्जो दे रहा था, उन पर वो गौर कर रहा था और वो उन पर गौर करके उनको निजात देने वाला था, उन पर तवज्जो करके उनको छुटकारा देने वाला था। आज इस नए साल के दिन में हमारे लिए भी ये पैगाम है, हमारे लिए भी ये पैगाम है कि हम खुद को तैयार करें। नए साल की इस अय्याम में हमारे लिए भी ये पैगाम है कि खुदा हम पर भी नजर करे, जिस तरह से आज से 2000 साल पहले उसने बनी इस्राएल कौम पर नजर की, आज से 2000 साल पहले उसने उन लोगों पर नजर की और उनको छुटकारा दिया, उनकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर किया, उन पर तवज्जो की, उनको निजात दी। आज यही पैगाम मेरे और आपके कि खुदा हम पर भी तवज्जो करे, लेकिन उसके लिए करना क्या है? उसके लिए ऐसे काम सर अंजाम देने हैं, उसके लिए हमने अपने आप को खुदा के हुजूर इस कदर तक जो है वो डाल लेना है कि हकीकत में खुदा वाकई ही हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करे, खुदा वाकई ही हम पर अपनी तवज्जो करे, क्योंकि खुदा जब हम पर अपनी तवज्जो करेगा, जब हमारे लिए वो सींग निकालेगा, जिस तरह से वो बादशाह दाऊद के घराने में से पैदा होकर उसने सींग निकाला, हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए अपनी तवज्जो हम पर मरकज करे, हमारे लिए अपनी तवज्जो जो है हमारे ऊपर मरकूज करे, ताकि हमारे लिए ये जिंदगी का स्वप्न ठहर जाए, हमारे लिए ये साल, ये नया साल, ये नया चढ़ा हुआ जो साल है वो हमारे लिए बायसे बरकत ठहर जाए। याद रखिए, अगर आप अपनी जिंदगियों में ये ध्यान करें कि नया साल चढ़ गया, 2023 भी ऐसे चला गया और 2024 भी ऐसा चला जाएगा, लेकिन याद रखिए आप अपनी जिंदगी में कमजोरियों को खुद लेकर आ रहे हैं। जिस तरह
गया, उसकी बीवी ने थोड़ा सा ईमान में कमी की, उन्होंने कहा कि हमारे सुलभ से कैसे औलाद पैदा हो सकती है, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हमारी तो उम्र इतनी नहीं है कि हम जो है वो किसी भी बच्चे को जो है वो जन्म दे सके। लेकिन याद रखिए, खुदा के आगे कोई भी चीज या कोई भी ऐसा काम जो है वो नामुमकिन नहीं है। खुदा के आगे कोई भी काम जो है वो नामुमकिन नहीं है। वो हर चीज को जो है वो मुमकिन करना जानता है, हर काम उसके हुजूर जो है वो मुमकिन है। वो हर एक जिंदगी में अपना जलाल नाजिल करना जानता है। वो जानता है कि किस जिंदगी पर मुझे तवज्जो करनी है, वो जानता है कि मुझे किस जिंदगी पर अपनी तवज्जो करके उसे निजात के लिए तैयार करना है। मैंने क्रिसमस के पैगाम में आपको बताया कि अंजील की मुनादी करना सब लोगों के लिए या उन तमाम लोगों के लिए जिनको पैगाम मिला या जिनको मखसूस किया गया, उनके लिए जरूरी था कि उन तमाम आम लोगों तक अंजील की मुनादी दी जाए। मैंने बताया था कि कोई भी इंसान खुद से निजात नहीं पा सकता, क्योंकि खुद से अगर निजात पाने लगते तो सारी दुनिया भाई खुद ही पा जाती, सारी दुनिया खुद ही तैयार हो जाती। लेकिन याद रखिए, कलाम मुकद्दस हमें जो है वो इस बात की गवाही देता है, कलाम मुकद्दस हमें इस बात की शहादत देता है कि अंजील मुकद्दस जिन जिन लोगों तक पहुंचाई गई, कलाम मुकद्दस की तमाम तारीफें या अंजील मुकद्दस की तमाम तारीफें जिन जिन लोगों तक पहुंचाई गई, उस कलाम की या उस अंजील की खास तौर पर मुरादी करने का एक ही मकसद है कि तमाम लोग जो है वो छुटकारा पा जाए, तमाम लोग जो है वो आजाद हो जाए और तमाम लोगों पर मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह तवज्जो करे और उन पर तवज्जो करके उनको आजाद, उनको छुटकारा। नया साल हमारे लिए एक पैगाम लेकर आया कि हम अपने आप पर खुदा की तवज्जो दिलवाएं, अपनी तो तवज्जो उस पर करें लेकिन अपनी तवज्जो खुदा पर लगाएं ताकि वो हमारे ऊपर अपनी तवज्जो करे। जब हमारी जिंदगियों पर उसकी तवज्जो लग जाएगी, जब हमारी जिंदगियों पर उसकी नजर टिक जाएगी, जब हम ऐसे काम करेंगे, ऐसे इरादे उसके हुजूर रखेंगे, तो यकीनन खुदा क्या करेगा, खुदा हमारी तरफ नजर करेगा। और जब वो हमारी तरफ नजर करेगा तो वो देखेगा कि मेरे लोग अब अपने आप को तैयार कर चुके हैं, वो अब चाह रहे हैं कि ये नया साल उनके लिए बाइस बरकत ठहरे, ये नया साल उनकी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत ठहरे। अजीजों, खुदावंद का कलाम फरमाता है खुदा का मंसूबा ये था कि दुनिया को मसीह दे। आज भी हमें जरूरत है कि अगर वो देता है तो हम उसे अपना आप दें। हम उसे क्या करें, हम उसे अपना आप दें। अगर आज हमने अपना आप ना दिया, इस नए साल में अगर हमने अपना आप उसे ना दिया, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में कोई कमी रह जाए। और नया ये चढ़ने वाला साल जो आज का पहला दिन है, ये 2024 जो है वो हमारे लिए कमियों कमजोरियों का फिर साबित करे। इस नए साल में हम चाहते हैं कि खुदा हम पर तवज्जो करे, उसका बेटा यीशु मसीह जो है वो हमारी जिंदगियों में अपना फजल जाहिर करे। याद रखिए, वो सिफारिश करने के लिए बैठा हुआ है खुदा की दाहिनी तरफ। बाप जो है वो सामने से नहीं देखता, बाप बेटे में से होकर देखता है, और बेटा जो है वो बाप से दरखास्त करता है, ਇਹਦੇ ਲਈ मैं खून पाया, ਇਹਦੇ ਲਈ मैं खून पाया, ਇਹਦੀ सुन, इनू नजात दे, इनू छुटकारा दे, इसे तवज्जो कर, इनू छुटकारा दे, ये मुस्तहिक है, ये कामयाब होना चाहता है, ये कामयाब होना चाहता है, ये मैनू पुकारता है, ये मैनू याद करता है, ਇਹਦੇ तो तवज्जो करता है। बाप क्या करता है, बाप बेटे में से होकर देखता है, वो दिशा देखता है कि वाकई क्या वाकई ही ये नजात का मुस्तहिक है, क्या ये तवज्जो का मुस्तहिक है, किस पर मैं नजर करूं, इसे मैं छुटकारा दूं। और आखिरकार जब दुआएं रंग लाती हैं, बादलों को चीरती हुई जाती हैं, और खुदा बाप के हुजूर जब बेटा सुनता है, बेटा बाप के हुजूर दरखास्त करता है। बेटा क्या करता है जी, बाप के हुजूर जो है वो दरखास्त करता है, और जैसे ही बाप के हुजूर जो है वो दरखास्त करता है, तो रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि खुदा ने मुझ पर अपनी नजरें करम की हैं, मैं चल नहीं सकता था, चलना शुरू हो गया, मैं बोल नहीं सकता था, मैं बोलना शुरू हो गया, मेरा सर फट रहा था, बंद हो गया, मैं बीमार था, मैं शिफा पा गया, मेरा जिस्म चूर चूर था, मेरा जिस्म शिफा में बदल गया,
मेरी जिंदगी जो है वो जीर्ण थी, मेरी जिंदगी तंगी में थी, मेरी जिंदगी जो है वो फ्रेश हो गई, मेरी जिंदगी जो है वो बदल गई है, मेरा रोना पुराना जो है वो खत्म हो गया है। ऐसे लग रहा है कि ये नया साल मेरी जिंदगी के लिए बायस बरकत, ऐसे लग रहा है कि ये नया साल मेरी जिंदगी के लिए बायस बरकत, ऐसा लग रहा है कि ये घराना मेरी अज़वाजी, ये जो सुनी हुई दुआ है या ये जो मौज़ा है मेरी खानदानी जिंदगी के लिए, मेरी अज़वाजी जिंदगी के लिए बायस बरकत बन गया है। और इस कलाम में कौन है? मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह। ये कलाम कौन है जी? मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है, वो चलता फिरता कलाम। इंसान 16 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है मुबारक है। आए कोशिश करें इस नए साल में अपने लिए भलाई के दिन देखने के लिए अपने आप को खुदा की तवज्जो का मरकज बनाएं, ताकि खुदा हमारे ऊपर अपनी तवज्जो करे, ताकि हम उसके हुजूर मुबारक ठहरे। खुदा हमारी काट छांट करे, हमारी तरबियत करे। यकीनन जब हमारी काट छांट करेगा, जब हम उसके हुजूर नए होकर निकलेंगे, एक नया फल लेकर आएंगे, वफादार रहेंगे, फिर उसके हुजूर मुबारक भी हो जाएंगे। ये काम जब हम तमाम कर लेंगे तो फिर क्या करेगा? खुदा हम पर तवज्जो करेगा, खुदा हम पर तवज्जो करेगा और हमारे लिए निजात का बंदोबस्त भी करेगा। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते जब खुदा ना चाहे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, खुदा के हुजूर झुकें, वफादार रहें, कलाम मुकद्दस को पढ़ें और अपनी जिंदगी को कमियां और कमजोरियां हैं तो उसके हुजूर रखें। कहें कि इस नए साल में हमारी तवज्जो का मरकज तू बने, इस नए साल में हमारी जिंदगियों की तवज्जो तू बने, हमारी जिंदगियों की बरकत तू बने, हमारी जिंदगियों को बदलने का सबब तू बने, ताकि ये नया साल हमारे लिए बरकत। आए अपने सिरों को झुकाएं, खुदा के हुजूर पेश करें, दुआ करें कि खुदावंद आज इस नए साल के पहले दिन में हमें बरकत करे, हमें तैयार करे, ताकि हम उसकी तवज्जो का मरकज जाए। खुदा मुझे और आपको इस काम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। दुआ करेंगे।